जैसे कि तुमने दोनों एग्जाम को क्रैक किया है, बोथ ASRB नेट एंड द ICRPSD. लेट्स स्टार्ट विद द ASRB नेट. ICRPSD, plant pathology, entomology, sericulture और nematology. He has secured all India's second rank in the ICRPSD exam for the 2025, but still he missed getting a seat at IRI. So this is a dark reality कि क्या है. सर फेलियर अगर मेरा होता ना तो फेलियर इज समथिंग जो आप बोल सकते हो कि इट इज़ फेयर, मैंने मेहनत नहीं किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला. बट सर कुछ कुछ जगह इंजस्टिस हो जाता है ना, उसको हम लोग फेयरली नहीं दे सकते सर. सो हाउ वाज योर फीलिंग? तुम्हारा फीलिंग कैसा था लास्ट 3 साल का जर्नी? अगर तुम याद करोगे, तुमने क्या सीखा है, क्या तुम्हें अच्छा लगा, कैसे तुम्हारा मेमोरीज रहे? एक्चुअली मेरा जर्नी एग्री के साथ बहुत बहुत मतलब एक कोइंसिडेंस था, वन काइंड ऑफ मुझे ब्लेसिंग से बोल सकते हैं आप, क्योंकि मेरा यूजी था डॉक्टर RPCU जो कि एक सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है. सो डिफरेंट स्टेट के पीपल्स के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला एंड आई हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम केरला, तमिलनाडु टू बिहार, यूपी, माई ओन स्टेट वेस्ट बंगाल. देन आई in my MSc also I got IRI. There you know, everyone know IRI, the most diversified culture, the diversified university, the best in India only. Like I would actually like to say on the camera, like I am very lucky to have you in our platform, and also personally I am very lucky to have you in your life. So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे. तो आज हमारे साथ हमारे एक वेल नोन मेंटर है, एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए वेल नोन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको याद भी करते हैं हमेशा, जो कंटेंट उन्होंने लास्ट 3 साल से दिए हैं. तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं. लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिम, अबाउट हिज एकेडमिक जर्नी. आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो bit upset about him because he has secured all India's second rank in the ICRPSC exam for the 2025, but still he missed getting a seat at IRI. So he will tell you and he will explain you in detail. वो बताएगा खुद कि उसने क्यों मिस किया है, कैसा मतलब IRI नहीं मिला है. सो दिस इज़ अ डार्क रियलिटी कि क्या है. आप सभी लोग जो अब आगे आने वाले हो, अभी ICRPG लिखोगे या PhD लिखोगे, लाइक इफ यू आर राइटिंग द PG एग्जाम, द PhD एग्जाम, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन एंड द कंडीशन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतिक, नेगेटिव्स को साइड पे रखते हुए, लाइक आई ऑलवेज कंग्रेचुलेट यू, यू हैव डन बेस्ट, लाइक वट एवर you could have done already. And of course, like getting a second rank, it's not a easy task. So it shows your sincere dedication and the hard work that you have done to secure this rank. And hope so, like no matter like whatever might have happened, you will definitely do good in your life. That I am very confident about. Okay. So first of all, thank you so much for coming here and sparing your valuable time with us. And students, like whoever is watching this video, this is not just about getting the answer for why he has not got IRI, but also about the clear-cut guidance for the ASRB NET exam and also the ICRPSD exam. So if you are willing to crack these exams in any of the upcoming years or the current year, this video will be a lot more beneficial for all of you. So don't skip the video, watch till the end. And if you have any doubts, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वहाँ से आपको सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. सो बिफोर वी स्टार्ट, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए. So hello everyone, as you know I am Ritik Sarkar and currently I am pursuing my PhD from Banaras Hindu University, BHU Varanasi. I have completed my undergraduation from Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Samastipur, Bihar, from ICR AIAA UG examination, and then I have secured all India second rank in general category in entomology subject group in ICR PG examination in 2023. And that time I got IRI Assam campus, and luckily IRI Assam campus people get the chance to complete their master degree program for IRI New Delhi only. That's why I completed my MSc journey fully in IRI New Delhi. And in 2025 I have attempted ICR PhD examination, and I have secured all India second rank again in general category only. But now currently I am pursuing my PhD in Banaras Hindu University, BHU Varanasi. And I have also cleared ICR ASRB NET examination as well as ICR ASRB prelims examination, and I will write the ARS mains examination in the upcoming month only. So this is my brief introduction. Okay. So this is about Ritik. मुझे लगता है कि like you have some connection with the second number. Okay. So in the ICRPG, उसने ICRPG में भी ऑल इंडिया जनरल रैंक सेकंड था, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट गेट IRI मेन कैंपस. ऐसा नहीं था, लाइक दिस वाज नॉट अ फैक्ट दैट सीट्स नहीं थे. सीट्स वेर देयर इन जनरल कैटेगरी. देयर वर लाइक 2 seats or 3 seats in the PG2, but still he missed it. Next in the PhD also there were 3 seats or 2 seats, again he missed it in the PhD2.
एंड इफ आई टॉक अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर मैं देख पाऊँ तुम लाइक यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम ICAR UG, वहाँ से तुम ICAR एग्जाम को लिखते आ रहे हो, एंड यू हैव लाइक वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो, लाइक कि तुमने UG बिहार से किया है, like although you are being from Bengal, West Bengal, then you PG from IRI, now you have gone for PhD for BHU. So overall experience कैसा था तुम्हारा कि अलग अलग स्टेट में तुमने 3 डिग्री अलग अलग स्टेट्स में कर रहे हो? एक्चुअली ये लकीली बोल सकते हैं सर कि ये वन काइंड ऑफ मुझे ब्लेसिंग से बोल सकते हैं आप, क्योंकि मेरा यूजी था डॉक्टर RPCU जो कि एक सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है. सो डिफरेंट स्टेट के पीपल्स के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, एंड आई हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम केरला, तमिलनाडु टू बिहार, यूपी, माई ओन स्टेट वेस्ट बंगाल. देन आई in my MSc also I got IRI. There, you know, everyone know IRI, the most diversified culture, the diversified university, the best in India only. There I got so many new friends from so many states. Then PhD also now I am doing from a central university, and there I also get some new faces, new friends from different parts of our country. So actually my journey was very like glorious. I used to find my journey is very good, but yeah, some things are there that is But like, you always feel positive about what if is I am always feel positive. I used to feel positive. That is the thing. So जैसे कि like you mentioned about like PG PhD, UG PG PhD, so mind was always clear, तुम्हारा mind always clear था कि ठीक है मुझे IS studies जाना है, मुझे MSc करना है, PhD करना है. So what was the thought in your mind? एक्चुअली मैं शुरू से ये था कि अगर पढ़ना है तो अल्टीमेटली पढ़ूंगा जितना दूर जा सकता है, क्योंकि देयर कोई पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है. जितना पढ़ोगे पढ़ाई आपको रिटर्न देगा ही सर. तो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो मुझे हमेशा उन लोगों का बैक मिला है. लाइक बेटा तुमको जितना पढ़ना है तुम पढ़ो. लाइक दे आर द लाइक वेरी सपोर्टिव. मुझे शुरू से ऑलवेज पढ़ाई के मामले में मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला है, और मैं माइंड में क्लियर था कि मुझे पढ़ना है, जितना हायर स्टडीज़ करना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, ये मेरा गोल था. तो इसी के साथ मैं अपना स्टार्ट किया था. यूजी में रहते हुए मैं JRF का तैयारी किया, तो उसके बाद लकीली मुझे ऑल इंडिया सेकंड रैंक मैंने अचीव किया, और मुझे IRI दिल्ली मिला, दैट टू इन लक. और MSc में भी मुझे IRI में जितना अच्छा गाइडेंस मिला, मुझे बहुत अच्छे गाइड्स मिले, मुझे अच्छे दोस्त मिले, तो लकीली उधर भी मेरा अच्छा एग्जाम हुआ. बट somehow some misfortunes are there. And you always wanted to come for IRI. Of course, like Exactly, sir. every student dream would be like landing into IRI at the end. So even for the PhD, I know like you planned for, like we planned, like we also expected, we desperately wanted you to come to IRI, but I was also like disheartened at that day, like when I got to know that you did not get the IRI. Let's be positive, like what has happened, like let's also discuss like how it has happened. The students will be actually curious to know. So many students thinks like whoever knows your rank and whoever doesn't know your rank and whoever knows you like that you have been done your MSc from IRI and then shifted to BHU for the PhD, they might like there would be like thought, okay, because of the rank he might have missed the IRI. But let's discuss like what's the actual fact about it. Before that, let's talk something about the journey with AgriEdit. And if you know like students, like he is our like mentor, like he's our main mentor for the subject of entomology. Why I say the main mentor? Because it's because of him that we started the subject of entomology, started guiding the students for ICAR PG exams, and we got like exceptional results and exceptional feedback from the students because of whatever time and dedication he has done in last 3 years. Over the last 3 years, he has guided over more than 500 plus students in all our master courses from the 3 years. I'm still guiding the students, and even is continuing his studies. So I'm very happy for that, and I feel very proud of having you here in our platform. So how was your feeling? तुम्हारा feeling कैसा था लास्ट 3 साल का जर्नी? अगर तुम याद करोगे, तुमने क्या सीखा है, क्या तुम्हें अच्छा लगा, कैसे तुम्हारा मेमोरीज रहे? एक्चुअली मेरा जर्नी एग्रीएडिट के साथ बहुत मतलब एक कोइंसिडेंस था. मेरे मम्मी और मेरे घर में बहुत कोई टीचर्स है, स्कूल टीचर्स है, तो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ टीचिंग मेरे जीन में है. मुझे इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है. जब मैं यूजी में था, मैं मेरे बैचमेट्स थे, उनके साथ उनको बहुतों को पढ़ाता था एंटोमोलॉजी. मेरा खुद इंटरेस्ट था और मैं पढ़ाता था, तो मुझे अच्छा लगता था कनेक्ट करने में, स्टूडेंट्स के साथ, किसी के साथ डिस्कस करने में पढ़ाई को लेके. तो JRF के रिजल्ट के बाद मैंने सर से कांटेक्ट किया, और लकीली सर मुझे अपॉर्चुनिटी दिए एग्रीएडिट में एंटोमोलॉजी स्टार्ट करने का. इसके लिए मैं सर से मतलब हमेशा थैंकफुल रहूँगा. एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे तो करना ही करना था, एंड लाइक आई ऑलवेज हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ वेरी गुड रैंकर टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट. बट स्क्रैच से स्टार्ट करना, जहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं था, कुछ भी कंटेंट प्रिपेयर नहीं था, कोई भी क्यूरेटेड फॉर्म में मतलब फ्लो में नहीं था कि कितने क्लासेस होंगे, क्या क्या कवर करना है, ये सब कुछ मॉक टेस्ट नहीं थे मेनली,
नोट्स नहीं था, सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया था। मुझे अभी भी याद है, सिंगल हैंडेडली उसने स्टार्ट किया था चीज़ों को स्टार्टिंग से। नेक्स्ट अभी सौरव इसके साथ, जो इसका फ्रेंड भी है, वो साथ दिया और उन दोनों ने बहुत अच्छा चलाए थे। लास्ट ईयर कोर्स का वो भी अच्छा फीडबैक था और इस साल भी लाइक दे आर डूइंग ग्रेट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो like I would actually like to say on the camera, like I am very lucky to have you, platform, and also personally I am very lucky to have you in your life. तो ठीक है, तो अभी मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि थोड़ा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। सो व्हाई यू मिस द IRI? पीजी का भी बताना, पीएचडी का भी बताना। टेल अस बोथ अबाउट द पीजी एंड द पीएचडी, बिकॉज इन द पीजी ऑल्सो यू डिड नॉट गेट IRI न्यू दिल्ली, यू गॉट द IRI Assam, but luckily there was a luck factor that worked there. You completed your MSc from IRI, but in the PhD still you got the second rank. There were like available seats which could have fetched you a seat, but still you missed it. So क्या है इसमें फंडा, क्या प्रॉब्लम है इसका? एक्चुअली आप जो ICAR के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू गाइज हैव नो अबाउट द ICAR स्टेट कोटा. 40% स्टेट कोटा मीन्स इन एनी कैटेगरी, like there will be only 40% students from a single state. Like myself, I am from West Bengal. So if there is like 4 seats are there, then 40% of 4 seats means one category. I am actually general, I am UR. I don't have any reservation. So if UR, there are like 4 seats, then only 2 people who are having UR can come. Like 4 into 4, 1.6 means 2 people can come. But if there is 3 seats and 2 UR people are there, then only the first ranker can come. So in my case, what happened now? Actually, in my JRF examination, I have secured second rank, but the first ranker, Suman Varman, he is also from my state, West Bengal only. So that time in IRI New Delhi, there were 2 seats in UR category. So Suman got the first seat, and I didn't get because of this state quota. Because like one category, one state, only one people can come. So I didn't get IRI New Delhi, but Hari sir only suggested me, Ritik, you can take Assam. So I am like always thankful and grateful to him. He only suggested me, Ritik, you can take Assam. There is slight chance. Like sir also told me, like if you take risk, you can get reward. So सीखो लाइफ में, रिस्क लेना सीखो, रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा. सर ओनली सजेस्टेड मी दिस. तो ये मैंने लिया रिस्क. लकीली मुझे IRI दिल्ली मिल गया, क्योंकि आसाम कैंपस तो प्रिपेयर नहीं था. इधर आया और इधर गाइड सिलेक्शन सब कुछ में रैंक का ही मैटर हुआ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. सिंपली मुझे अपने चॉइस का गाइड मिला, मुझे अपना अच्छा रिसर्च किया, मैंने पेपर भी पब्लिश किया और सब कुछ लकीली हो गया. देन मैंने एग्री एडिट में तो पढ़ाता ही था. एक्चुअली मुझे तो अच्छा लगता था पढ़ाना, और बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्ट हुआ. बहुत स्टूडेंट्स को मैं स्टूडेंट्स को अपना जूनियर्स की तरह दिखता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ, वो स्टूडेंट्स है, मतलब वो मेरे जूनियर्स है, और मुझे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है. जब मैं क्लास लेता हूँ सबके साथ बहुत इंटरेक्शन करता हूँ. अब बताओ लाइफ में क्या चल रहा है. ऐसा नहीं बस पढ़ाई से नहीं होता है, बहुत कुछ रहता है लाइफ में. मेंटल प्रेशर रहता है, कॉलेज में रावे में क्या होता रहता है. सो मैं कनेक्ट करता था, और जितना हो सके मैं अपने साइड से इनपुट्स देता था कि आप लोग पढ़ो, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ मेंटेन करो, बट दिन में 2 घंटे एंटोमोलॉजी पढ़ो, कुछ टाइम जनरल एग्रीकल्चर पढ़ो, टेलीग्राम वगैरह में क्विज वगैरह अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट है एग्री एडिट में इतना अच्छा, वो सब अटेंड करो, सब कुछ करो, अच्छा मिलेगा. मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा. तो फिर मैं SRF का तैयारी खुद स्टार्ट किया अपने, मतलब खुद के लिए. लाइक दिसंबर जनवरी में मैंने स्टार्ट किया. 6 मंथ्स मैंने अच्छे से मेहनत किया, और मुझे ऑल इंडिया सेकंड रैंक मिला उसमें भी. बट उसमें भी सुमन जो JRF में रैंक 1 था, उसका SRF में रैंक 1 हुआ. ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, एक्सेप्शनल स्टूडेंट, आई नो हिम. सो उसका रैंक 1 हुआ. लेकिन SRF में क्या हुआ कि IRI में ओनली 3 सीट्स था UR कैटेगरी में. आई एम रैंक 2, सुमन गॉट रैंक 1. सो 3 सीट होते हुए भी, मतलब मेरे लिए 2 अवेलेबल सीट होते हुए भी मुझे नहीं मिला. ये मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है. मतलब सिंपली सर, आप भी मेरे जगह रहोगे, कोई भी स्टूडेंट्स ही विल फील सर. एक्चुअली सर, फेलियर अगर मेरा होता ना, तो फेलियर इज समथिंग जो आप बोल सकते हो कि इट इज़ फेयर. मैंने मेहनत नहीं किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला. बट सर, कुछ जगह इनजस्टिस हो जाता है ना, उसको हम लोग फेयरली नहीं दे सकते सर. एक्चुअली देयर आर सम थिंग्स दैट विल बी देयर. मैं जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करूँ सब ठीक है, बट कुछ चीज़ें लगता है कि मैं डिजर्व करता था वो सीट, तो वो मुझे नहीं मिला. लाइक यू हैव सेक्यूर्ड सेकंड रैंक. अगर तुमको थोड़ा लेट रैंक कम भी होता, 10-15 भी होता, तब मैं मान के चला जाता सर. आई विल एक्सेप्ट द ट्रूथ. दिस इज व्हाट लाइक एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड. सी देयर इज ऑलवेज लाइक 1% लक. सी लक का मैं बताऊंगा तो ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो और लक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है. बट यू शुड बी ऑल्सो लाइक अवेयर ऑफ द रियलिटी. यू शुड बी एक्सपोज योरसेल्फ टू द रियलिटी कि ऐसा क्या कंडीशन है. ऐसा अपना बिल्कुल अगर रैंक 2 आ गया, रैंक 3 आ गया, तो यू कांट मेक द माइंडसेट दैट आई विल गेट एवरीथिंग.
So that's how it is. But still, from every story, like you have to take something positive, like just being like he did not stop pursuing the PhD because of the fact that he did not get IRI. Still, he continued his preparation and he just admitted to BHU now. He's like also looking forward to write the mains exam. He's preparing for it. So that's how the life goes. Yes, sir. So this is about the 40%. The emphasis regarding was like 40% domicile rule. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लाइक ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर was from like the category, is from some category, but still remember this, even though the category seats are available, the first ranker will be allotted to the general category. First the general category seats will be filled by any of the students irrespective of whichever category they belong to. कोई भी category वो स्टूडेंट बिलोंग करे, लेकिन पहला जनरल कैटेगरी में सीट्स भरे जाते हैं, उसके बाद ही बाकी कैटेगरी का भरे जाते हैं. अगर इनकेस सुमन सेकंड रैंक आता और ऋतिक फर्स्ट रैंक आता तो सुमन को भी सीट मिलता और ऋतिक को भी सीट मिलता. सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्श रियलिटी दैट वी हैव टू फेस बिकॉज ऑफ दिस 40% डोमिसाइल रूल. एंड ऑफ कोर्स आई एग्री, सो सम रूल्स हैव बीन मेड टू गिव द गुड इम्पैक्ट. कोई कुछ अच्छा रीजन के लिए बनाया है, लेकिन ऑफ कोर्स एवरी गुड थिंग्स विल हैव अ बैड इम्पैक्ट इन सम और द अदर थिंग. सो दिस इज हाउ इट इज. तो ये तो पूरा स्टोरी था, सबको पता होगा, अभी पता चल गया होगा कि एक्चुअल फैक्ट क्या है. तो अभी आप लोग लाइक एवरीवन ऑफ यू शुड लाइक बी वेल अवेयर ऑफ दिस. एंड अभी बाद में जाके मत बोलना है रैंक के बाद, सर मुझे पता ही नहीं था 40% रूल के बारे में. सो आई होप लाइक यू विल बी अवेयर ऑफ दिस नाउ. ठीक है ऋतिक, तो लेट्स कीप द नेगेटिव थिंग्स असाइड एंड लेट्स बी पॉजिटिव एंड आई विश यू द ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ एंड यस यू डिजर्व इट एंड यू विल डू इट. अभी हमारे स्टूडेंट्स के बाद लोग, हमारे स्टूडेंट्स के लिए लाइक फॉर ऑल अवर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल अवर ऑडियंस, जस्ट स्टार्ट गाइडिंग अबाउट द एग्जाम्स. जैसे कि तुमने दोनों एग्जाम को क्रैक किया है, बोथ ASRB नेट एंड द ICRPS. लेट्स स्टार्ट विद द ASRB नेट विच इज लाइक मोस्टली ट्रेंडिंग बिकॉज उसका अगला नोटिफिकेशन भी आ गया है. कोई भी बंदा लाइक इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड वांट टू क्रैक द एंटोमोलॉजी ASRB नेट एग्जाम्स, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, कितना टाइम चाहिए होगा, और like if you know like we have also launched the ASRB course for the entomology too. So उस कोर्स में क्या फ़ायदा मिलेंगे, क्या एक्स्ट्रा एड्स मिलेगा, ओवरऑल इसका समरी दो डिटेल में. एक्चुअली ASRB नेट क्या होता है, ARS का प्रीलिम्स होता है. मतलब आप नेट क्वालिफाई करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे AP बनने के लिए. कहीं पर भी लाइक इफ देयर इज एनी पोस्ट ऑफ AP और यू कैन से सर SMS STO, देन यू नीड द नेट. विदाउट नेट यू कांट बी like apply for that post. So ASRB net is very important if you want to pursue like teaching like any AP post or anything like in higher studies if you want to pursue. And it is also like ASRB net is the pre of the ASRB mains examination, ARS mains examination. So it is very vital examination. Those who have that particular desire, yeah I want to become a scientist, I want to do something good for my country, तो उनके लिए बहुत vital exam है. ASRB net और like JRF SRF में क्या main difference है ना, ASRB नेट इज लाइक कोर फ्रॉम योर सब्जेक्ट. उसमें बट बस तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी है, बस उसी से क्वेश्चंस रहेगा. और ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस जस्ट नॉर्मल लाइन बाय लाइन बुक्स आएगा. वो क्या होगा एक्चुअली, आप साइंटिस्ट बन रहे हो, आप AP बन रहे हो, तो वो आपको टेस्ट करेगा, आपका नॉलेज टेस्ट करेगा कि आपको अप्लाइड नॉलेज कितना है, आप सब्जेक्ट को कितना अप्लाई कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली कितना जानते हो सब्जेक्ट को. तो इसीलिए ASRB नेट में थोड़ा बहुत चीज़ ऐसी है कि जो आपको पढ़ना होता है कोई अच्छा मटेरियल से, अच्छे सोर्स से. अगर मैं अपना खुद का बताऊं, मैं अपने ASRB नेट क्वालिफाई किया UR कैटेगरी ओनली. सो मेरा ऐसा हुआ कि मुझे IRI में जो MSc में नोट्स मिले थे, उसका क्लास नोट्स वगैरह का बहुत अच्छा इम्पैक्ट था. मुझे टीचर्स से बहुत इम्पैक्ट मिला. सौरभ चक्रवर्ती सर ने अभी जो बताया, JRF ऑल इंडिया रैंक 1 और SRF में भी अभी रैंक 1 करके IRI में पढ़ रहा है, वो मेरा स्कूल फ्रेंड है. तो मुझे उससे भी बहुत गाइडेंस मिला. मैं ऑफकोर्स उसका नाम हमेशा बोलता हूँ कि उसने मुझे बहुत गाइड किया. एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, ही जस्ट गाइडेड मी फ्रॉम स्टार्ट टू नाउ, स्टिल ही इज़ गाइडिंग मी. सो क्लास नोट्स आपको अब जो पढ़ोगे MSc में, जो प्रैक्टिकल्स करोगे, आप उसको अच्छे से करना सीरियसली. ऐसा नहीं कि क्लास में कुछ करा रहा है, प्रैक्टिकल करा रहा है, मैं जाके मोबाइल लेके टाइम पास कर रहा हूँ, ये सब मत करना. अच्छे से प्रैक्टिकल्स वगैरह करना, क्लास में समझना. जैसे इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, देन अप्लाइड पार्ट में अगर आते हैं टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, सबका प्रैक्टिकल्स अच्छे से करना. और अप्लाइड पार्ट में अगर आते हैं तो IPM, HPR, इनोवेटिव अप्रोचेस, फिर सब मॉलिकुलर पार्ट्स, वो सब से क्वेश्चंस रहते हैं मेनली, वो सब पढ़ना है. और उसके साथ साथ करेंट थिंग्स, जैसे कि ICAR के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. जैसे हम लोग के एंटोमोलॉजी के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूट है, NBIR, सबको पता ही होगा, बेंगलोर में है NBIR. तो उसके वेबसाइट में जाओ, आप जाके वेबसाइट में आप लोग चेक करते रहो, कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नया फॉर्मुलेशंस, कुछ बना या नहीं. ICAR CICR जो नागपुर में है कॉटन वाला, फिर NIVSM रायपुर, देन NRI कटक, IRI न्यू दिल्ली, हर एक जगह पे कुछ नया इन्वेशन लाइक इनोवेशंस वगैरह होते रहते हैं, इन्वेंशंस वगैरह होते रहते हैं. उसको आप लोग देखो, उसको आप लोग पढ़ो, कॉपी में लिखते रहो,
क्योंकि इस बार ही अगर ASRB नेट का एग्जाम देखते हैं तो मतलब सर अच्छा खासा क्वेश्चन आया कि इंडिया में बासमती राइस का लाइक यूरोपियन मार्केट में जो एक्सेस है वो कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? 3-4 इंसेक्टिसाइड्स का उसमें जो MRL वैल्यू होता है उससे ज़्यादा रेसिड्यू है। तो ये सब के लिए आपको पेपर वगैरह भी मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ कोड तो आप लोग पढ़े ही हो, JRF SRF में आप लोग जितना पढ़े हो, इंसेक्टा, देन ट्रिपल ई, रिफ्रेशर, ट्रिटाइज। जो एक चीज़ मुझे book है। एम्फोसाइज करो यहाँ पे, लाइक जितने बुक्स तुमने ICRPG क्रैक करने के लिए कवर किए थे, जो बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा बुक्स तुमने ऐड किए थे वहाँ हाँ, एक एक्स्ट्रा बुक मैंने ऐड किया था। IRI में मेरे हम लोग के एक प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर मोगली रामैया, उनका एक बुक है, बहुत अच्छा बुक है, द स्मार्ट हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी। बहुत अच्छा बुक है, आप लोग भी उसको परचेस कर सकते हो। उसमें दैट इज़ लाइक मेनली मेंट फॉर दैट ASRB ARS मेंस एग्जामिनेशन ओनली। उसको आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग TV प्रसाद सर का जो हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी है वो बुक आप लोग पढ़ सकते हो। फिर उसके साथ आप लोग अगर आप ARS मेंस लिखना चाहते हो तो एक 3 वॉल्यूम का बुक आता है, पैनासिया ऑफ एंटोमोलॉजी, जो प्योरली मतलब टारगेट करते हैं मुझे मेन से लिखना है, मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। इट इज़ नॉट फॉर लाइक JRF स्टूडेंट्स, लाइक इट इज़ ASRB नेट के लिए भी चाहिए। ASRB नेट के लिए मैं चाहिए, मैं इसलिए ये तीनों बुक को हाईलाइट किया, क्योंकि JRF के लिए जो जो चाहिए वो तो आपका बेस है। सर बेस एक बार आप बन गया, फिर उसके ऊपर आप एक एक करके मंजिल आपको बस बनाना है। ओके, सो ये जो बुक है ये आपका नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट तो स्टेप। ओवरऑल मैं समराइज करूँ कि ASRB नेट किसी को क्रैक करना है, चलो कि ज़्यादातर लोगों को गाइडेंस तो मिलती नहीं है, और एकेडमिक्स की बात करूँगा तो नॉट ओवर ऑल इंडिया, लाइक द प्रैक्टिकल्स विल बी गुड, द एकेडमिक्स विल बी गुड। अगर कोई भी बंदा बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है तो लगभग कितना बुक्स होंगे जो लिस्ट में होंगे जो पढ़ना होगा? बेसिक से स्टार्ट करने तो फर्स्ट TNU ऑथर्स का जो बुक है इंसेक्टा 1 एंड इंसेक्टा 2 वो आपको करना ही है। वो बुक है बेसिक। जैसे जो लोग नीट का तैयारी करे होंगे, जैसे कि मैं खुद किया था, तो NCERT बायोलॉजी 11-12, NCERT फिजिक्स, NCERT केमिस्ट्री, जैसे वो बाइबल होता है, उसको आप मेन बुक बोल सकते हो। तो इंसेक्टा 1 इंसेक्टा 2 है मेन बुक, बट उसको बेस करके आप JRF SRF क्रैक नहीं कर सकते हो। उसके साथ आपको पढ़ना है एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर बाई CPVG सर, देन एंटोमोलॉजी ट्रीटाइज बाई TV प्रसाद सर, देन हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी, then elements of economic entomology by Dr. V.V. Ramamurthy sir, who is now currently the president of Entomological Society of India. Then उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए TV प्रसाद सर का बुक कर सकते हो। एक बुक है बहुत अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी एंड निमाटोलॉजी। एंड वन थिंग आई विल ऐड, जो हम लोग एग्रीएडिक में क्लास नोट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें जितने भी बुक्स है सबको समराइज करके बनाते हैं। तो अगर कोई JRF SRF या ASRB नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो मैं खुद बोलूँगा कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। जो हम लोगों का क्लास नोट्स है, जैसे कि जो 3 नया बुक का नाम मैंने अभी बोला, तो अभी जो न्यू सेशन चल रहा है, मैं खुद जितने भी बहुत सारे नए कंटेंट टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया उसी 3 बुक से, क्योंकि मुझे लगा मैं जब खुद बेनिफिट ले रहा हूँ तो जो जुड़े एग्रीएडिट के साथ उनको भी वही सेम मिलना चाहिए। Yes, ये and मेरा also like one more है। thing to add, so we'll be soon coming up with our own handbooks of AgriEdict for entomology too। उसमें सारा कंपाइल करेंगे, जितना भी उसने बुक्स बताया था उससे कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल के क्रिस्प वे में देंगे, ताकि लोग स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का बाद मेन दिक्कत होता है ना, टाइम नहीं होता। यस सर। देखो उनका भी प्रॉब्लम, उनका भी वो नहीं है कि वो लाइक मेहनत नहीं करते, मेहनत तो करते ही जो लोग मतलब अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है कि यूजी में रावे का ELP का बहुत प्रेशर रहता है, कहीं कहीं फेयर नहीं होता, कुछ लोगों को टाइम ज़्यादा मिलता है, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और पीजी में तो पता ही है, सो इट्स ऑल अबाउट रिसर्च एंड एकेडमिक्स, तो वहाँ पे भी टाइम कम मिलता है। लाइक दैट्स वेयर लाइक विल ब्रिज द गैप। लाइक वी विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट, हम आपको क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे एज लाइक वीडियो लेक्चर्स के द्वारा, एंड प्लस विल बी ऑल्सो गिविंग यू द proper topper notes in a compiled way, so that in a short period of time you gain the knowledge। ultimately जो gain करना है, जो मेहनत करना है, आपको ही करना है, like you have to do it, but we will help you to make the process smoother and overall learning experience will be great with AgriEdit। तो ये तो हो गया ASRB नेट के लिए। तो इतना पढ़ वो आपके लाइन के साथ कुछ ऐड करना चाहूँगा, हम लोग आपको पाथ शो करेंगे, बट जाना आपको ही है। यस एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि तो आप हमारे जो एकेडमी है उसमें ज्वाइन कर लो आपको हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने प्रीवियस जितने भी पॉडकास्ट बनाया है उसमें भी मैंने आई क्लियरली मेंशन दैट इट्स यू लाइक हु हैज टू डू द हार्ड वर्क। ओके ऋतिक, तो हो गया लाइक ASRB नेट, ASRB का पूरा हो गया। स्टिल अगर स्टूडेंट्स आपको ना इससे भी थोड़े डिटेल में चाहिए, थोड़ा विजुअली आपको चाहिए ना, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। सौरभ ने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें उन्हें इससे A to Z बताया है, तो वो भी देख लेना। उससे भी ज़्यादा कुछ अपडेटेड थिंग्स है ना, वो ऋतिक यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रहा है, तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेक्स्ट ठीक है, ASRB नेट तो हो गया। अभी ICAR PhD, किसी का टारगेट है कि उसको SRF फेलोशिप लेना है, ICAR PhD क्रैक करना है, उसमें फेलोशिप भी लेना है। अगर फेलोशिप का अमाउंट बात करूंगा, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द फेलोशिप अमाउंट, इट इज लाइक 37 फॉर 2 years एंड नेक्स्ट 42 फॉर 1 year, विच हैज बीन रिसेंटली रिवाइज।
अगर किसी का ये टारगेट है एंड किसी का ये भी टारगेट है कि लाइक दे वांट टू कम इनटू IRI, सो यस, हाउ दे हैव टू प्रोसीड एंड हाउ मच इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड? सो मैंने खुद SRF क्रैक किया, मुझे फेलोशिप मिल रहा है, अवार्ड लेटर मिल गया है। सो मैं बताऊंगा कि SRF के लिए आप लोगों को मिनिमम 6 महीने आपको रखना है। यू हैव टू कीप मिनिमम 6 मंथ्स, बिकॉज हाँ मुझे भी पता है देयर इज़ द रिसर्च वर्क, MSc सेकेंड ईयर प्रेशर रहता है, बट स्टिल रिसर्च के साथ साथ जैसे कि फुल डे आप लोग लैब में काम कर रहे हो, जैसे जो मेरा फील्ड वर्क था ड्रोन के ऊपर, स्प्रेइंग के ऊपर था, तो मैं पूरा दिन फील्ड में रहता था, देन शाम को आके मैं 2-3 घंटा अपने लिए रखता था। तो SRF लाइक नॉट JRF में हम लोग क्या पढ़ते हैं आप लोगों को पता है, जनरल एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, दैट्स इट। बट SRF यू इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग दे नो, लाइक 3 पार्ट है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A इज फॉर लाइक GA पार्ट। GA मीन्स नॉट जनरल एग्रीकल्चर, इट्स लाइक जनरल नॉलेज, कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइक उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी से भी पूछ सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री से भी, और कहीं कोई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जैसे इस बारी डायरेक्टर ऑफ IRI, देन DG ऑफ ICR, इन लोगों के बारे में भी क्वेश्चंस था। तो आपको अपना जो अवेयरनेस है और थोड़ा बढ़ाना है। पेपर वगैरह भी अगर आप लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते करते 1-2 पेजेस रीडिंग कर लिए, द हिंदू, बस हेडलाइंस वगैरह देख लिए, कोई भी पेपर का, वो भी बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि पार्ट A में मुझे लाइक 20 क्वेश्चंस में मैंने 17 क्वेश्चंस करेक्ट किया था, क्योंकि मेरा जो जनरल नॉलेज, जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट, मैं खुद बोलता हूँ मेरा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। देन पार्ट बी है क्रॉप साइंस वाला पार्ट, जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट्स मेनली फोकस करते हैं एंटोमोलॉजी के लिए। प्लांट पैथोलॉजी, सेरिकल्चर, निमेटोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक इक्वल डिवाइड हो सकता है, लाइक 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, लाइक दैट, ऐसे करके 50 क्वेश्चन फुल होता है। देन पार्ट C इट इज कोर एंटोमोलॉजी, लाइक 50 क्वेश्चन फ्रॉम एंटोमोलॉजी। सो दिक्कत कहाँ होता है ना, हम लोग एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। लाइक इन आवर JRF टाइम्स वी मेनली प्रिपेयर 3 थिंग्स, एंटो, निमेटो एंड जनरल एग्रीकल्चर, बट नाउ 2 more subjects are there, plant pathology, sericulture. Sericulture is of course like it's a part and parcel of our entomology, but still you have to read it like so many new things are there, you have to read from like some good standard books. एंड प्लांट पैथोलॉजी, एक्चुअली प्लांट पैथोलॉजी आप लोग बोलेंगे कि JRF में प्लांट साइंस का पार्ट था, बट SRF में एंटोमोलॉजी का। अल्टीमेटली ये एक प्लांट प्रोटेक्शन है, आवर ग्रुप इज प्लांट प्रोटेक्शन, सो एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, सेरिकल्चर एंड प्लांट पैथोलॉजी इज आवर सब्जेक्ट ग्रुप ओनली। अब जब हायर स्टडीज़ में कोई भी SMS STO का पोस्ट चाहोगे, ऐसा नहीं कि SMS एंटोमोलॉजी, SMS प्लांट पैथोलॉजी, ऐसे नहीं, वो पोस्ट आते हैं SMS प्लांट प्रोटेक्शन, लाइक दैट। उसमें अब एंटोपैथो के लिए अलग अलग स्पेसिफिक वैकेंसीज आते होंगे। सो प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि मैंने खुद स्टार्ट किया था उसी समय, तो उसी में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा। तो उसके लिए जैसे कि सबको पता है 2 बेसिक बुक्स या फिर PDF बोल सकते हैं। जो अंगराव है उसका प्लांट पैथोलॉजी 171 एंड 271, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई डोज, एक वो मटेरियल, और एक है 271 जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। ये जैसे आपको पढ़ना ही है, फुल लाइन बाय लाइन 3-4 टाइम्स रिविजन देना है। इसके साथ साथ एक बुक है डॉक्टर मानन कश्यप का, प्लांट पैथोलॉजी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लाइक उसमें 1 लाइनर्स है, वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप HC दुबे से न्यू क्लासिफिकेशंस, बैक्टीरिया, वायरस, ये जो पार्ट है वो वाला पार्ट आपको देखना है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा और, जैसे मैं खुद एक मनोज कुमार यादव सर का बुक था, वो भी थोड़ा देखा था। और तो जो मैंने बताया मनोज कुमार यादव, उसके साथ साथ आप एग्री एडिक्ट में पारुल मैम है, मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ, उनका टीचिंग वो बहुत अच्छा है। क्योंकि SRF के पहले वो कुछ प्लांट डिजीजेस के ऊपर कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाए थे, जो आई थिंक अवेलेबल है, एग्री एडिक्ट हिंदी मीडियम जो चैनल है उसमें अवेलेबल है। मैं खुद उसको देखा था, तो मतलब एक एक क्लास में एक एक क्रॉप वो कवर किए थे और बहुत अच्छे से कवर किए थे। उन बहुत अच्छा पढ़ाते, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। आई यूज टू रेट हिम वेरी हाईली बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर। तो उनका वीडियोज़ आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ये मेनली प्लांट पैथोलॉजी के लिए है। तो उसमें मेन क्या है, आपको बार बार पढ़ना है। हम लोगों के लिए क्योंकि ये नया है तो आपको बार बार रिविजन करना है। फिर उसके साथ है एंटो, निमेटो, ऐसे उसको भी नहीं छोड़ सकते। एंटोमोलॉजी इज अवर कोर सब्जेक्ट, वो डेली आप लोग पढ़े जा रहे हो, कोर्स वर्क किए उसमें से पूरा सब कुछ किए, तो एंटोमोलॉजी तो आपको साथ साथ करना ही है। निमेटोलॉजी में जैसे हम लोग एक सीनियर है IRI के, जीवन सर। सो भाई लाइक ही इज़ वेरी एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। जीवन सर का क्लासेस एग्री एडिक्ट के कोर्स में अवेलेबल है, कुछ क्लासेस यूट्यूब में भी अवेलेबल है, जो देखना चाहते हो अभी जाके आप लोग देख सकते हो। निमेटोड टैक्सोनॉमी, निमेटोड मॉर्फोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर्स है उनका, और वो एग्री एडिक्ट में इस साल पढ़ा भी रहे हैं। ये सर ARS मेंस के बाद सर भी फ्री हो जाएंगे तो सर भी पढ़ाएंगे। तो उनके क्लासेस आई थिंक जो निमेटोलॉजी जिनको डर लगता है, जिनको लगता है कि निमेटोलॉजी क्या है नहीं है, उनके लिए वो एक क्या बोलूँ, ट्रेजर, हिडन ट्रेजर टाइप का है। एक क्लास करोगे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं खुद मतलब जीवन सर से पर्सनली इंटरेक्ट किया 2 साल इधर, कोई भी डाउट्स वगैरह हुआ तो उनसे क्लियर हो गए। और बाकी एंटोमोलॉजी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, जो बेसिक बुक्स है उसको ही पढ़ो अच्छे से।
सेरिकल्चर में एक ही बुक अच्छे से पढ़ना है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्टरी सेरिकल्चर बाय गंगा एंड सुलोचना चेट्टी। एक ही बुक है, आई थिंक 300-400 पेजेस का है, उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना। वो बुक अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो इनफ है सेरिकल्चर के लिए, लाइक 10-12 क्वेश्चंस यू कैन इजीली कवर। ओके तो तुमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में लाइक यू हैव सेड एवरीथिंग इन डिटेल की स्टार्टिंग से लेके प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी सेरिकल्चर और नेमेटोलॉजी सो ऑल ऑफ दिस कंटेंट इज एक्चुअली अवेलेबल इन आवर एग्रेडिट मास्टर कोर्स ऑफ ICAR PhD 2 जिसमें पढ़ा रहे ऑल इंडिया फर्स्ट ऑल इंडिया सेकंड रैंक जो टॉपर्स है जो हमारे सामने भी बैठे हुए हैं तो खुद पढ़ाएंगे जो खुद का एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर करेंगे ताकि आपका ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ट होगा सो इफ यू हैव ऑलरेडी प्लान और इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर ICAR PhD अगर ICAR PhD में प्रिपेयर करना चाहते हो इफ यू वांट टू सिक्योर द बेस्ट रैंक द ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन इज जॉइनिंग एग्रेडिट मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा क्योंकि मैंने पर्सनली फीडबैक सुना है स्टूडेंट के साथ जो ऋतिक के बारे में बोलते हैं जो सौरव के बारे में बोलते हैं जो कंटेंट के बारे में बात करते हैं सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप ज्वाइन करोगे ना नो डाउट यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स एंड द बेस्ट फीडबैक अबाउट द कोर्स तो ये ओवरऑल हो गया कोर्स के बारे में तो जो भी रिलेटेड लिंक्स होंगे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर जाके चेक करना ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें स्टिल अगर आपको लगता है कि आपने कुछ डिस्कस नहीं किया है कुछ स्किप हुआ है इस वीडियो में देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना तो वहाँ से हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले हो या कुछ भी यूजफुल चीज़ें लगे हो तो ज़रूर लाइक करना शेयर करना आपके दोस्तों के साथ एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड ऋतिक एंड करने से पहले आई वुड लाइक ओनली टेल यू वन थिंग सो जस्ट keep going the way you are doing it you are already doing it great उसका कोई नहीं है you are doing it great so please doing great things in your life definitely will achieve good things hopefully like we'll be seeing you soon in the coming times तो ये था हमारा सारा वीडियो इस वीडियो में लगभग हमने सब चीज़ों को डिस्कस किया है अगर बिफोर वी एंड इफ यू हैव एनी मैसेज टू ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स प्लीज लाइफ में सेटबैक्स अपसेट बहुत कुछ आएंगे, कुछ चीज़ ऐसे लगेगा आपको कि जो मुझे मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, बट एक चीज़ रखना हमेशा पॉजिटिविटी। देखो मेरे साथ जो हुआ है मुझे बिल्कुल बुरा लगा है, बट क्या करेंगे बुरा लगा के, आगे तो बढ़ना है, कुछ तो करना है। अभी अगर बुरा लगा के बैठे रहते हैं घर पे तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने वही पाथ लिया कि आगे बढ़ना है मुझे, तो मैं PhD कर रहा हूँ, मुझे ICAR के थ्रू SRF स्कॉलरशिप मिल रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं सब लोग मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सोच के आगे बढ़ो अच्छे से। ऐसा नहीं कि विल ऑलवेज गेट इफ़ यू ऑलवेज वर्क हार्ड, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमेशा आपको वही रिजल्ट मिलेगा। कुछ लक फैक्टर करता है, बट हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता। पढ़ो अच्छे से आप लोग, अच्छा रिजल्ट करो आप लोग और बस पॉजिटिव रहो। दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेशनल मैसेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही है okay so that's it guys this is what we wanted to share with you all from this video so I told you like if you like the content like if you think that something very important for you like you have got from this video so please like share subscribe and support AgriEdit thank you so much